Hello friends, I am Avinash Agarwal from Disha Publication. While working with Disha Publication, I had the opportunity to meet, interact and interview more than 100 toppers of different competitive examinations. Today I am going to share with you a very interesting story about one such interview. New year is about the corner and so are the exams. So whether you are preparing for JEE or NEET or board or banking or UPSC or any other examination, you are just 3-4 months away from the examination. So with New Year coming in, today's story is about the New Year resolution of a topper. Couple of years back, I was in Rajasthan on a family visit. We came to know that the student who has topped JEE that year lives in a village nearby. We thought of taking a chance and without any fixed appointment, we thought of driving to his village. When we reached his village and when we were walking towards his house, what I could see was kacha pakka road and mud houses. And I was thinking that how can somebody prepare, compete and succeed in such an adverse situation, whereas we sitting in Delhi have all kind of alibis. AC नहीं चल रहा, गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, टीचर सही नहीं है, किताबें सही नहीं है, मन नहीं लग रहा, all kind of बहानेबाजीज. And here is a child who has prepared for JEE, one of the toughest examination in the world, without help of any coaching institute, and not only succeeded but topped the examination. So my anxiety and curiosity was very high. When I reached his house, I got the second surprise. I came to know that his father was a farmer और सारी family जो है अपने खेतों पे काम करने गई थी. Along with the neighbor, we walked towards his field and that is when I met the JEE topper along with his father, mother and his younger brother, and all of them were working in the fields. His father said that let's go to the house and talk over a cup of tea. While I was going back along with the family towards the house, एक क्वेश्चन जिसका जवाब मेरा दिमाग बहुत तेजी से ढूंढने की कोशिश कर रहा था. ऐसा क्या है कुछ बच्चों में जो इतनी आसानी से सक्सेस पा लेते हैं और ऐसा क्या कमी है कुछ बच्चों में जो भरसक मेहनत और भरसक प्रयास के बाद टॉपिंग की तो बात ही छोड़िए, सक्सेस के लिए ही तरसते रह जाते हैं. जैसे ही हम उसके घर पे पहुंचे, मेरा क्यूरियोसिटी लेवल इतना हाई था कि जिस क्वेश्चन से मैं यूजुअली इंटरव्यू खत्म करता हूं, मैंने उसी क्वेश्चन से अपना इंटरव्यू शुरू किया और मैंने कहा, गुड मॉर्निंग टॉपर, व्हाट इज योर सीक्रेट ऑफ सक्सेस? Hello topper, what is your secret of success? The boy took me to his study room and in front of his study table there was a big white chart and he said, sir, this chart is my secret of success. चार्ट इतना बड़ा वाइट चार्ट था, उसके ऊपर 3 रोज बनी हुई थी. एक पतली रो थी इस तरीके से, एक बड़ी रो थी इस तरीके से और नीचे एक पतली रो थी. टॉप रो पे लिखा हुआ था टारगेट IIT JEE रैंक 1 to 10. टॉप रो पे लिखा हुआ था बोल्ड कैरेक्टर्स में टारगेट IIT JEE रैंक 1 to 10. He said, sir, it is this target written in bold which made me believe that he can do it. The belief got converted into actions. Actions led to further result, which ultimately got converted into success. So dear friends, the first and the foremost thing which I am trying to tell you over here is that before you prepare and before you achieve success in any examination, clear cut knowing what your target, what your goal is extremely important. जब तक हमें मंजिल ही नहीं पता अपनी, जब तक हमें मंजिल ही नहीं पता, तब तक हम उसको हासिल कैसे कर सकते हैं. बहुत से स्टूडेंट से मैं ऐसे मिलता हूं जिनको पता तो होता है उनका टारगेट, पर वो पूछेंगे कि सर व्हाइट चार्ट पे लगाने की क्या जरूरत है. व्हाइट चार्ट पे अगर आपके सामने आपका टारगेट है, इससे बहुत फर्क पड़ता है. आपको उससे पावर मिलती है, उससे वाइब्रेशन मिलती है, उससे आपका माइंड ट्यून अप होता है कि हाँ हम इसको हासिल कर सकते हैं. So the first resolution of the new year is that all of us should have a very well clearly defined target and clearly defined goals. ज्यादातर स्टूडेंट्स के पास टारगेट्स और गोल होते हैं, हो सकता है वो पेपर शीट पे ना लिखे हों पर बैकअप द माइंड में होते हैं, पर जो उनके पास नहीं होता कि उस टारगेट या गोल को वो कैसे अचीव करेंगे, माने प्लान. और दैट ब्रिंग्स मी बैक टू द टॉपर्स वाइट चार्ट. सेकंड रो में जो IIT JEE के टॉपर ने लिख रखा था, उसने डिटेल्ड प्लान बना रखी थी सेकंड रो में कि किस तरीके से वो अपने उस टारगेट को अचीव करने वाला था. तो मैं यहाँ पे आपको कहना चाह रहा हूँ कि टारगेट के साथ साथ उस टारगेट को कैसे अचीव करना है, ये शायद उतना ही इंपॉर्टेंट है या उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बहुत से स्टूडेंट से जब हम बात करते हैं तो कहते हैं सर प्लानिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, प्लानिंग वर्कआउट नहीं होती, फेल हो जाती है, प्रेशर होता है. मैं उन्हीं स्टूडेंट से वापस पूछता हूँ जब भी मैं काउंसलिंग सेशंस में होता हूँ कि अगर आपको अपने फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने जाना है तो क्या आप प्लान बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, और अगर प्लान बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे. उसी का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर वो स्टूडेंट्स देते हैं, सर हम सबसे पहले डिसाइड करेंगे कौन सी मूवी जाना है, फिर डिसाइड करेंगे कौन से थिएटर में जाना है, फिर डिसाइड करेंगे कौन सा शो देखना है, और यहां तक भी डिसाइड करेंगे कि कौन सी सीट्स लेनी है और इंटरवल के अंदर हमें स्नैक्स के अंदर क्या खाना है. तो माने प्लानिंग इंपॉर्टेंट है. एक छोटे से इनकॉन्सिक्वेंशियल इवेंट की हम बहुत डिटेल में प्लानिंग करते हैं, बट जब हमारे लाइफ गोल्स की बात आती है तो सब कुछ हम भगवान भरोसे छोड़ देते हैं, सब कुछ हवा में छोड़ देते हैं. जो चीज आपने भगवान भरोसे छोड़ दी है, जो चीज हवा में छोड़ दी, उसका अंजाम क्या होगा वो हम सब लोगों को पता है. डियर फ्रेंड्स, what I'm trying to tell you is that after you define your goals or after you define your target, it is extremely important to make a concrete
step-by-step plan of how you are going to achieve that goal. प्लानिंग बनाना कोई बहुत एक बड़ी लंबी चौड़ी एक्सरसाइज नहीं है. प्लान आप 5 मिनट में बना सकते हैं. आप अपने गोल्स को मंथली गोल्स में स्प्लिट कीजिए, फिर वीकली गोल्स और फिर डेली गोल्स. हम प्लान इसलिए नहीं बनाते हैं कई बार क्योंकि हमें प्लान बनाने से डर लगता है, क्योंकि प्लान हमें टेंशन में रखती है, प्लान हमें डिसिप्लिन करने की कोशिश करती है. बट प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. ध्यान रखिए, किसी ने सही कहा है दैट इफ यू फेल टू प्लान यू आर एक्चुअली प्लानिंग टू फेल. और खास तौर से अब जबकि आप दिसंबर जनवरी में आ चुके हैं, आप अपनी तैयारी के एक ऐसे क्रूशियल फेज में जा रहे हैं जिसमें हर एक दिन नहीं, हर एक घंटा नहीं, हर एक मिनट इंपॉर्टेंट है. एक एक मिनट इज वेरी प्रेशियस. तो उस मिनट को कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे उसको ऑप्टिमाइज करना है और कैसे उस मिनट से एक एक मिनट को हमें अपनी परफॉर्मेंस की सहायता से हमें अपनी परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज करना है, इसके लिए हमारे पास प्लान होना बहुत जरूरी है. तीसरी चीज जो उस टॉपर्स वाइट चार्ट की बात करते हैं, उस टॉपर्स वाइट चार्ट के अंदर एक तीसरा स्टेटमेंट और लिखा हुआ था. और यकीन मानिए माय फ्रेंड्स, टॉपर्स चार्ट पे जो तीसरा स्टेटमेंट था वो सबसे पावरफुल स्टेटमेंट था जो कि मैंने आज तक अपनी 15-16 साल की लाइफ में देखा है. मैं हजारों बच्चों से मिला हूं, उससे पावरफुल स्टेटमेंट नहीं देखा. और मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप उस स्टेटमेंट को अपनी तैयारी के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं कुछ हद तक भी, तो कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक दे. वो स्टेटमेंट इतना पावरफुल है और सिंपल है. तो वो स्टेटमेंट ये था, टॉपर ने रिजोल्यूशन में अपने ये लिख रखा था कि कम व्हाट में आई विल नॉट सी द सॉल्यूशन टिल द टाइम आई गिव माय बेस्ट. जाने कहने का मतलब ये है कि जब तक मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहा हूं, जब भी मैं किसी क्वेश्चन को कर रहा हूं, तो जब तक मैं अपना पूरा प्रयास नहीं लगा लेता, पूरी ताकत नहीं लगा लेता, तब तक मैं सोल्यूशन को नहीं देखूंगा. ज्यादातर स्टूडेंट्स कैसे करते हैं, मैं बहुत से स्टूडेंट्स से मिलता हूं, तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बुक खोले हुए होते हैं, इधर क्वेश्चन पढ़ रहे होते हैं, दूसरी तरफ उनका हाथ होता है. आप समझ सकते हैं ना, हाथ में क्या होता है, हाथ में सोल्यूशन होते हैं. तो वो क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सोचते हैं कि, और फिर सोल्यूशन को देखते हैं और सोचते हैं कि हाँ मैं इस सोल्यूशन क्वेश्चन को अगर अटेम्प्ट करता खुद से तो ऐसे ही करता. अगर आप भी इस मेथोडोलॉजी को अप्रोच कर रहे हैं, सो यू आर अप्रोचिंग फॉर ए ब्लंडर, यू आर डूइंग ए बिग मिस्टेक्स. द क्वेश्चंस जिस तरह ये क्वेश्चन जो आप सोल्यूशन पढ़ के समझ रहे हैं, दीज क्वेश्चंस विल नॉट लीड यू एनीवेयर. आपको जब तक उस क्वेश्चन को सॉल्व ना कर दें तब तक सोल्यूशन की तरफ हाथ नहीं लगाना है. तो जब ये टॉपर ने मुझसे ये कहा दैट कम व्हाट मे आई विल नॉट एवर सी द सोल्यूशन, तो मैंने उस टॉपर से पूछा कि आप फिर कोई क्वेश्चन अगर आपसे नहीं होता है तो आप कैसे करते हैं. सो ही शेयर्ड विद मी ए वेरी इंटरेस्टिंग टेक्निक व्हिच आई एम नाउ गोइंग टू शेयर विद यू. ही सेड कि जब मैं पहली बार किसी क्वेश्चन को करता हूं और वो क्वेश्चन नहीं होता है तो हम उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं. कुछ टाइम के बाद, मे बी 2 आवर्स 3 आवर्स, या नेक्स्ट डे उस क्वेश्चन को मैं फ्रेश पर्सपेक्टिव से अप्रोच करता हूं. फ्रेश पर्सपेक्टिव का मतलब ये है कि पहली बार जब मैंने उस क्वेश्चन को किया था, किस तरीके से किया था, उसको देखने की बात तो दूर है, उस बारे में मैं सोचता भी नहीं हूं, बिकॉज मैं चाहता हूं कि मेरा माइंड उस क्वेश्चन को एक नए तरीके से देखे, एक नए एंगल से देखे, और एक फ्रेश माइंड से मैं उस क्वेश्चन को अप्रोच करने की कोशिश करता हूं. अगर मैं उस क्वेश्चन को सेकंड अटेम्प्ट में कर पाया तो बहुत सही, नहीं कर पाया तो तीसरे स्टेप पे मैं क्या करता हूं कि वो क्वेश्चन किस कंसेप्ट पे बेस्ड है, उस कंसेप्ट के ऊपर अपनी फंडामेंटल बुक को निकालता हूं. माने उस कंसेप्ट को आपने जिस किताब से सीखा है, जो आपकी फंडामेंटल बुक है, वो कंसेप्चुअल बुक है, उसको खोलेंगे, उस बुक का वो चैप्टर, वो पेज जहां पे वो कंसेप्ट बेस्ड है, जिस कंसेप्ट पे वो क्वेश्चन आधारित है, उस कंसेप्ट को आप धीरे धीरे पढ़ेंगे. क्वेश्चन आपके दिमाग में घूम रहा है, आप थ्योरी को धीरे धीरे पढ़ रहे हैं. शायद आधी तेजी से, जितनी तेजी से आप नॉर्मल थ्योरी को पढ़ते हैं, धीरे धीरे आप थ्योरी पढ़ रहे हैं. क्वेश्चन आपके दिमाग में घूम रहा है, आप थ्योरी को जब पढ़ रहे हैं तो आप उस क्वेश्चन का डेस्परेटली आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और आपको पता है कि इस क्वेश्चन का जवाब आपको इस थ्योरी से ही मिलेगा. इंटरनेशनल रिसर्च ये कहती है कि अगर आप इस एक्सरसाइज को करें तो 70% चांसेस हैं, यू हैव 70% चांसेस दैट यू वुड बी एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन ऑन योर ओन. और अगर आप उस स्टेज में आ जाते हैं और अगर आप उस क्वेश्चन को अपने आप कर पाते हैं, तो बिलीव मी माय फ्रेंड्स, यू हैव रीच्ड अनदर स्टेज इन योर प्रिपरेशन, you have reached another sphere in your preparation of whichever examination you are following, and nobody can stop you. You have taken first step towards becoming a master blaster problem solver. But remember, this is a very painful process, this is a very time consuming process. बहुत बार ऐसा होगा कि एक क्वेश्चन को करने के लिए आपको आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे लग जाएंगे. But believe me, each and every second which you spend struggling with a question is going to help you. Dear friends, I have given you 3 resolutions based on my interview of a topper. The first resolution is that you should have a well-defined target. अभी बहुत टाइम बचा है, अभी 3-4-5 महीने का टाइम है, और 3-4-5 महीने में मैजिक हो सकता है, बहुत टाइम है. आज भी अगर हम जाग जाएं और आज भी अगर हम तैयारी पे 100% कमिटमेंट हो जाएं तो बहुत डिफरेंस हम क्रिएट कर सकते हैं. सो द फर्स्ट रेजोल्यूशन वाज दैट यू शुड हैव ए वेल डिफाइंड टारगेट. The second resolution was that you should have a written plan of how you are going to achieve the target. And the third resolution is that come what may, I will not see the solution
till the time I give my best. Thank you, bye-bye, and best of luck to all of you.